Hello students, hope all of you are well. So today we will learn about the line integral, that is the next topic of our syllabus. In the first internal, all of you have learned double integration, triple integration, that is the applications of double triple integrations. Now we will learn the line integral, because actually here we have to know about some vector calculus applications in the integration, that is the Green's theorem, Stokes theorem and divergence theorem. So let us start with our topic, line integral. Very simple topic and very small topic. So obviously we know integration a to b fx dx is represent a definite integral. And what is the geometrical meaning of this integration? This means the area under the curve bounded between x equals to a, x equals to b and the curve and x-axis. So that is the geometrical meaning of the integration a to b fx dx. So now what is the difference between the line integral and this definite integral? In case for the line integral, the function actually given to us is nothing but a function of x and y. So if it is a function of x and y, then we can consider it as another coordinate system, that is a third coordinate z. So suppose that is our curve, smooth curve, may be continuous, must be bounded, otherwise the integration cannot be happen. So the curve is going like this, say z equals to f of xy, be any curve. Now we will take the projection of this curve on the from upside, so it will project on the xy plane. Now in the xy plane we will consider another curve, capital C. Okay, C may be parabola, maybe portion of ellipse, maybe portion of circle, etc. So C be the curve which is situated on the xy plane, and depending on this C curve we have to integrate this function. Okay, so basically there is the difference between these two diagram. You can see that if for this diagram actually it is the area bounded between the curve x-axis and x equals to b, but here the integration will happen over the curve. Okay, over the curve the integration will happen, and some boundary points will be given from where we will draw the perpendicular which will intersect the function z equals to f of xy at some point. So these 2 points will be the upper limit and lower limits of the integral, and this is the area of the curtain, is nothing but representing by the line integral. बहुत ही एक सिंपल सॉल्यूशन है इसका. तो चलो प्रॉब्लम से हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना. तो कैसे करेंगे? द टेक्निक इज दैट व्हेन एवर यू गेट द कर्व सी, देन ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी गिवन ऑन द कर्व सी. तो ठीक है ना. तो सी एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो इसका मतलब एक्स और वाई को मिला के कुछ ना कुछ रिलेशन दिया हुआ जाएगा सी कर्व के लिए. ठीक है. तो अभी इस फंक्शन को हम लोग को इंटीग्रेट करना है कर्व सी के ऊपर. तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x का वैल्यू आइदर कांस्टेंट होगा या फिर y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं. तो पूरा इंटीग्रेशन को एक वेरिएबल में हम लोग को कन्वर्ट करना है, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन है, सिंगल इंटीग्रेशन है. तो पूरा इंटीग्रेशन को आइदर x में कन्वर्ट करना है या फिर y में कन्वर्ट करना है. अभी जहां जहां पे y होगा, y का वैल्यू हम लोग x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कर्व सी. तो सी में तो x और y का एक रिलेशन दिया हुआ जाएगा, उसमें से y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में लिख के वो y को हम लोग कहां पे पुट कर देंगे? f ऑफ xy पे पुट कर देंगे. तो f ऑफ x कॉमा क्या हो जाएगा? यहाँ पे fx हो जाएगा. ठीक है ना. y इज ए फंक्शन ऑफ x डिपेंडिंग ऑन द कर्व सी, और x का वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट बिठाएंगे तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है. So let us start with the problem. Say evaluate this function where c be the line segment AB from a equal to 0 0 to 2 1. So यहाँ पे देखो कर्व C क्या है? कर्व C है, ये दोनों पॉइंट है a 0 0 और b है 2 1. ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे कोई स्ट्रेट लाइन से, वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है हमारा कर्व C. तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 2 1, तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम है. पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, क्या होता है? x माइनस x1 by y माइनस y1 इक्वल्स टू x2 minus x1 by y2 minus y1. So by this process we have find out the equation of the straight line joining a and b. So what is the equation? y equal to half x. तो ये है हमारा कर्व C, और C कर्व के ऊपर y का वैल्यू क्या है? x by 2. तो y का वैल्यू अगर x by 2 है तो dy क्या हो जाएगा? हाफ dx हो जाएगा. अभी ये जो इंटीग्रेशन था, यहाँ पे जहां जहां पे y होगा, y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? x by 2 पुट करेंगे, और dy के जगह पे क्या पुट करेंगे? हाफ ऑफ dx पुट करेंगे. ठीक है. और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? अगर पूरा इंटीग्रेशन को हम लोग x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x का लिमिट क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे x है 0, यहाँ पे x है 2, तो 0 to 2 हो जाएगा x का लिमिट. सो सिंपली वी विल गेट दिस वन.
यू कैन चेक इट एंड द आंसर इज दिस। तो बहुत ही सिंपल है ये प्रॉब्लम, अगर एग्जाम में आ जाता है तो खुद को लाकी समझना, क्योंकि ये फ्री का मार्क्स है, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉब्लम को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स फॉर द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। कार्व सी क्या है? C is a an arc of a parabola y equals to x square। तो यहाँ पे बोला ही है कि C क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये है हमारा फंक्शन, तो y के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। और लिमिट क्या है? लिमिट भी बोला है यहाँ पे 0 से 1 तक। तो लिमिट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वाई स्क्वायर क्या, वाई क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, एक्स टू द पावर 6 आ जाता है। तो यहाँ पे dx है तो dy निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसको मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो, इवेलुएट इंटीग्रेशन ओवर सी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स where c is the circle x square plus y square equals to 1। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका मतलब रेडियस है हमारा 1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि y का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Now if you put this value here y square, that is 1 minus x square, and take the integration, you can take the integration, but sometime it may face some difficulty whenever we will take in this form. So for such type of function which are well known curve, we will generally apply the पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म तुम लोगों को मालूम है, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। पैराबोला का होता है x इक्वल्स टू 280, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280। ऐसे करके जो भी होता है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, रेडियस है हमारा 1, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा था तो r का वैल्यू तो 1 है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा, y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा। अभी अगर सर्कल को पूरा हम लोग को लेना है तो पूरा रोटेशन हम लोग को लेना चाहिए था। पूरा रोटेशन के लिए थीटा कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। थीटा पूरा रोटेट करेगा तो थीटा का एंगल कितना होगा? 0 to 2 पाई, तभी ना जाके पूरा सर्कल क्रिएट होगा। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 to 2 पाई, और जहां पे x है हम लोग कॉस थीटा बिठाएंगे, साइन थीटा बिठाएंगे y की जगह पे। तो x अगर कॉस थीटा है तो dx क्या होगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ जाता है 0, ठीक है। सो दैट इज आवर आंसर। Similarly, I have done the fourth problem. So this is the topic, very simple topic, very small topic. So try to solve all those problems, and if you want to practice it, then take any book if you want and practice the problem. Today, tomorrow I will give you the note of the Green's theorem. Okay, sequentially I will give you the Green's theorem, Stokes theorem and divergence theorem. After that we have left with another topic, that is the power series solution of the ordinary differential equation.